علیکم ٹو آل ویورز۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے تغدقین اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور ارطغرل اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں ہم جلد یا دیر سے نویان کو پکڑ لیں گے۔ تغدقین کہتا ہے میں اس کا دل نکال لوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں فوراً تغدقین کے پیچھے جاؤ۔ پھر سنگرتکین ارطغرل سے کہتا ہے تغدقین کو اکیلا مت چھوڑنا تب تک وہ قبیلے میں نہیں پہنچ جاتا۔ ارطغرل پوچھتے ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے؟ سنگرتکین کہتا ہے نہیں، جب تک ییت اور نویان نہیں مل جاتے میں واپس قبیلے میں نہیں آؤں گا۔ یہ معاملہ جلد ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر وہ ارطغرل سے گلے ملتے ہیں اور ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سنگرتکین سے کہتے ہیں اگر آپ کو ییت مل جائے تو اسے زندہ قبیلے میں لانا ہے بھائی، ہم اسے سلطان علاؤالدین کے حوالے کریں گے۔ پھر ارطغرل اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کے جانے کے بعد سنگرتکین اپنے آپ سے کہتا ہے ارطغرل انصاف کو خاموش مت کرو جبکہ یہ ییت کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے غداری کی ہے تو اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ دوسری طرف مہمان خانے میں گنجگل سعادتدین سے کہتی ہے کل آپ کی فتح کا دن ہے امیر حضرت۔ سعادتدین کہتا ہے غدار ترک سرداروں کے ساتھ ییت بھی مارا جائے گا۔ اس طرح ارطغرل اور تغدقین کو میرے غصے کا پتہ چل جائے گا اور کل کی جنگ میں انشاءاللہ میں خود کمانڈ کروں گا۔ کل ایک پاک دن ہوگا جس میں وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے جو میری اطاعت نہیں کرتے۔ پھر گنجگل پوچھتی ہے سنگرتکین اور گندگدو کے ساتھ کیا ہوگا؟ سعادتدین کہتا ہے وہ اپنے قبیلے کے مستقبل کے لیے سب کچھ کریں گے اور کائی قبیلے کے لیے میرے پاس ایک منصوبہ ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان میں سے ایک نیا ہیرو سامنے آئے اور اس ہیرو کی لگام میرے ہاتھ میں ہوگی۔ گنجگل پوچھتی ہے وہ ہیرو کون ہوگا؟ سعادتدین کہتا ہے سنگرتکین وہ میری مدد سے ہیرو بن جائے گا جب وہ نویان کو مار کر گوگچے کو بچا لے گا۔ دوسری طرف منگول ییت اور ترگت کو لے کر ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر پہلے سے کافی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ منگول اور 3 ترک قبیلے کے غدار بھی موجود تھے۔ وہ لوگ سلطان زندہ باد کہہ کر ییت کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ییت سب کو خاموش کرا کر ان سے بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے میرے سرداروں، آپ نے ریاست کی تمام مشکلوں کو برداشت کیا ہے اور دشمنوں سے بھی لڑتے رہے اور اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن ان سب مشکلات کے دوران سلطان علاؤالدین کہاں تھا؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا سلطان کو اپنے لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے؟ اس پر سب لوگ بلند آواز میں کہتے ہیں نہیں۔ پھر ییت کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وہ لے لیں جو ہمارا حق ہے۔ میں اسی لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ریاست کا انصاف اور محبت دکھائی جا سکے۔ اس پر سب لوگ سلطان زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ییت اپنے گھوڑے سے اتر کر خیمے کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک سپاہی آ کر اس کے سامنے ایک باکس رکھتا ہے جس میں سونے کے سکوں سے بھری پوٹلیاں ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سب کو سونے سے بھری پوٹلیاں دینے لگتا ہے۔ اسی دوران ترگت بھی اسے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف گنجگل سعادتدین سے پوچھتی ہے میرا مستقبل کیا ہوگا؟ سعادتدین کہتا ہے انتقام لینے کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ کونیا کے محل میں لے کر جاؤں گا اور میں تمہاری شادی ایک بڑے کمانڈر سے کرا دوں گا۔ اب تم نویان کے پاس جاؤ لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم یہاں پر آئی تھی۔ جب وہ تغدقین کو مار دے تو تم فوراً واپس میرے پاس آ جانا۔ گنجگل کہتی ہے جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ دوسری طرف قبیلے میں حیمہ خاتون اور گندگدو واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں اور گوگچے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دوندار اندر داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے ہم نویان کو نہیں پکڑ سکے۔ یہ سن کر سیلجان رونے لگتی ہے اور حیمہ خاتون کہتی ہیں نویان جانتا تھا کہ ہم اس کے غار پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے پھر تو اس نے ارطغرل کے لیے بھی کوئی جال بچھایا ہوگا۔ یہ سوچ کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر حیمہ خاتون غصے سے کہتی ہیں ہم نے اپنے بہادر آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے نویان کے جال میں بھیج دیا ہے۔ پھر گندگدو کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ نویان نے گوگچے کو کیوں اغوا کیا ہے۔ دوسری طرف نویان جنگل میں ایک جگہ پر پہنچ کر گوگچے کو گھوڑے سے اتارتا ہے۔ پھر وہ اسے لے کر ایک جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنا ایک نیا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ گنجگل کو آواز دیتا ہے اور کچھ دیر بعد گنجگل بھی وہاں آ جاتی ہے۔ گوگچے اسے وہاں دیکھ کر شدید غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں مار دوں گی۔ پھر نویان اسے روک لیتا ہے اور گنجگل کو رسی لانے کا کہتا ہے۔ پھر گنجگل رسی لے کر آتی ہے اور نویان سے کہتی ہے تو تم نے دترگا قبیلے کی عورت کو پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں گوگچے کو پکڑ کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں۔ گوگچے گنجگل سے کہتی ہے تو اب تم نویان کی عورت ہو۔
इसी दौरान उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और गुंजगुल गोगच के मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है। फिर नोयान उसे रोकता है और कहता है, सब्र से काम लो, ये मत भूलो कि ये हमें तुदकीन देगी। दूसरी तरफ तुदकीन वापस कबीले में आ जाता है और अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ वापस आ रहे थे। तुदकीन सीधा हाइमा खातून के खेमे में जाता है और पूछता है, गोगचे कहाँ हैं? हाइमा खातून खड़ी होती हैं और कहती हैं, नोयान ने गोगचे को अगवा कर लिया है। तुदकीन गुस्से से कहता है, क्या मतलब है कि उसने अगवा कर लिया है? क्या इतने बड़े कबीले में से किसी को हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आकर उसे रोक ले? गुंदुगदु कहता है, तुदकीन बे, हम भी कब्रिस्तान के करीब थे, लेकिन हमें माफ़ कर दो, हम उसे बचा नहीं सके। अर्तुगरुल पूछते हैं, भाई वो कब्रिस्तान में क्या कर रही थी? गुंदुगदु कहता है, मुझे लगता है कि उसे जानबूझकर वहाँ किसी ने भेजा था। तुदकीन कहता है, मैं गद्दार को तलाश करूँगा और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके कबीले के सामने फैला दूँगा। ये कहकर तुदकीन जाने लगता है तो अर्तुगरुल उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुदकीन बे, ये जान लो कि नोयान का मसला तुम्हारे साथ है, गोगचे के साथ नहीं। वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। दूसरी तरफ गुंजगुल नोयान का तीर निकाल रही होती है जो धुंधार ने उसे मारा था। गुंजगुल कहती है, गोगचे को यहाँ लाकर तुमने मेरी तकलीफ को कम कर दिया है। और इस दौरान गोगचे अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद नोयान उठकर अपने घोड़े के पास जाता है और गुंजगुल से कहता है, हमारा असल मकसद तुदकीन और अर्तुगरुल है, कल वो मारे जाएंगे। तुम गोगचे का ख्याल रखना, हमारा काम होने के बाद हमें गोगचे को सही सलामत सुंगुर्तकीन के हवाले करना है। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुगरुल कहते हैं, गोगचे को कब्रिस्तान में भेजने वाला शख्स वही है जिसने उसके कपड़े गार में नोयान के पास भेजे हैं, बल्कि हमारे कबीले के गद्दार ने। तुदकीन कहता है, गोगचे खातून को कब्रिस्तान जाने के लिए जिसने कहा है, वो गद्दार मेरे कबीले से है। फिर तुदकीन कहता है, सादतिन मुझसे क्या चाहता है? इस पर गुंदुगदु कहता है, सादतिन तो नोयान को तांगुत के हाथों मरवाना चाहता था। फिर वो दोनों मिलकर इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अर्तुगरुल कहते हैं, भाई, हमारे दुश्मन एक दूसरे से मिल गए हैं और वो हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं, और सादतिन अपने सारे गंदे काम नोयान से करवा रहा है। हाइमा खातून कहती हैं, ये किस तरह का खेल है बेटा, और कितनी जानें हम उस घटिया आदमी को देंगे? अर्तुगरुल कहते हैं, वो कबीलों की मुखालिफत के बगैर मुझसे और तुदकीन से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इतने में तुदकीन को कुछ बात याद आती है। जब वो नोयान की गार पर हमला करने के लिए जा रहे थे तो बुआज अल्ब ने घोड़े के ज़ख्मी होने का बहाना किया था और तुदकीन ने उसे कबीले वापस भेज दिया था। ये सोचने के बाद तुदकीन कहता है, गद्दार का पता चल गया है मुझे, और गद्दार बुआज है। इसके बाद तुदकीन खेमे से बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से पूछते हैं कि बुआज कहाँ हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, हाइमा खातून ने गोगचे खातून की तलाश के लिए जो सिपाही भेजे हैं वो भी उनके साथ गया है। तुदकीन बुआज के खेमे में जाकर तलाशी लेने लगता है। इसके बाद अर्तुगरुल और गुंदुगदु भी वहां आ जाते हैं। फिर तुदकीन कहता है, जब हम नोयान के गार पर जा रहे थे तो उसने कहा था कि मेरा घोड़ा लंगड़ा रहा है, और इसी दौरान उसकी नीयत ख़राब थी। इसी दौरान तुदकीन गुस्से से एक तरफ हाथ मारता है तो सोने से भरा बर्तन नीचे गिर जाता है और काफ़ी सारे सोने के सिक्के नीचे फैल जाते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, ये वाज़ेह है कि ये सोने के सिक्के कहाँ से आए हैं? तुदकीन कहता है, मैं उसे मार दूंगा। अर्तुगरुल कहते हैं, तुदकीन बे, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा। वो आज हमें गोगचे तक पहुँचाएगा, लेकिन जब तक नोयान नहीं चाहता हम उस तक नहीं पहुँच सकते और हमें उसके पैगाम का इंतज़ार करना होगा। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सिपाही बुआज सादतिन के पास जाकर बताता है, नोयान ने गोगचे खातून को अगवा कर लिया है, जैसे आपने हुक्म दिया था। सादतिन कहता है, बहुत अच्छे बुआज अल्ब, अब तुदकीन की बारी है, अब तुम फ़ौरन नोयान के पास जाओ। इतने में एक सिपाही आकर बताता है कि सुंगुर्तकीन बे आपसे मिलना चाहते हैं। सादतिन बुआज से कहता है, तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ और सुबह होते ही नोयान के पास चले जाना, और तुम दोनों मिलकर तुदकीन से निपट लेना। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सुंगुर्तकीन अंदर दाखिल होता है और सादतिन उसे खुशामदीद कहता है। फिर सुंगुर्तकीन उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, हमने नोयान का ठिकाना ढूंढ लिया था और हमने उसके सिपाही भी मार दिए थे और हमने उसका ठिकाना भी तबाह कर दिया था। इस पर सादतिन उसकी बात काट देता है और कहता है, लेकिन नोयान तुम लोगों को नहीं मिला और ना ही शहजादे यीद।
सुंगुर्तिकीन कहता है क्योंकि नोयान जानता था कि हम उसके गार पर हमला करने वाले हैं और उसने हमारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए गोकचे को कबीले से अगवा कर लिया है ताकि वो तुद्दकीन को अपने जाल में फंसा सके। सादतिन कहता है इस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ और गोकचे तुम्हारी बहनों की तरह थी। सुंगुर्तिकीन कहता है हमारे कबीले में कोई है जो उसके साथ मिला हुआ है। सादतिन कहता है बिल्कुल, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मैं वो वादा पूरा करूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। मुझे पता चला है कि कबीले की एक औरत नोयान के साथ है और वो उसके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा है और मुझे नोयान के ठिकाने का भी पता चल गया है। सुंगुर्तिकीन पूछता है कहाँ है वो और वो औरत कौन है अमीर हज़रत? सादतिन कहता है गोकचे हातुन को अगवा करके लाजमी उसने अपनी खुफिया जगह पर रखा होगा और शहजादा ईद भी वहीं होगा। अब तुम वो जिम्मेदारी पूरी करो जो सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें दी है। सादतिन कहता है तुम्हें शहजादे को मारना होगा और गोकचे को बचा लो और गद्दार का भी पता लगा लो। सुंगुर्तिकीन पूछता है अमीर सादतिन वो खुफिया जगह कहाँ है? सादतिन कहता है अभी तुम यहाँ रुक कर कुछ खा पी लो और आराम कर लो। कल हमारे लिए जंग का दिन है। जब तुम नोयान पर हमला कर रहे होगे तब मैं 3 तुर्क गद्दार कबीलों पर हमला कर दूंगा क्योंकि मुझे उनके कबीलों का भी पता चल चुका है। इससे पहले कि वो 3 तुर्क गद्दार कबीले सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ सिपाही इकट्ठा करें, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा और अब इन ज़मीनों पर अमन कायम करने का वक्त आ गया है। सुंगुर्तिकीन इस काम के बाद मैं कोनिया वापस जाने का सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस जाऊँ तो मैं इस जगह पर किसी काबिल एतमाद आदमी को यहाँ बिठाना चाहता हूँ और वो काबिल एतमाद आदमी तुम हो सुंगुर्तिकीन। ये सुनकर सुंगुर्तिकीन सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ यीत अपने खैमे में बैठा होता है और उसी दौरान नोयान अपने घोड़े पर वहाँ आ जाता है। फिर वो सीधा तुर्गुत के पास जाता है और उससे कहता है मौत तुम्हारे काफ़ी करीब है। फिर वो कहता है अगर तुम मुझसे भागने का ख्वाब देख रहे हो जैसे तुम सलेबियों से भागे थे तो मत देखो। फिर तुर्गुत कहता है अगर तुम मुझे मौत से डराने का ख्वाब देख रहे हो तो मत देखो क्योंकि मौत मेरे लिए मिलाप है। नोयान कहता है तुम्हारी बीवी को भी जला दिया गया था जब वो भी तुम्हारी तरह ताकत दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्या तुम्हें भी जलना नहीं चाहिए? ये सुनकर तुर्गुत गुस्से में आ जाता है और नोयान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 सिपाही आकर उसे काबू कर लेते हैं। ये देखकर यीद भी उठकर वहाँ आता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर? नोयान उसके पास आता है और कहता है मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि आप अर्तुगरुल को अताअत कबूल करने वाला ख़त लिखो। यीद कहता है अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन को कभी भी धोखा नहीं देगा और उसे ख़त लिखना वक्त का ज़ाया करना होगा। नोयान कहता है जब आप उसे ख़त लिखोगे तो वो यहाँ ज़रूर आएगा और उसकी अताअत करने से आप ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे और आपके कबीले के सरदार भी यही चाहते हैं, वरना वो अपना गुस्सा तुर्गुत पर निकालेंगे और तुर्गुत की ज़िंदगी का फ़ैसला भी इसी बात पर होगा। और इस पर यीद कुछ सोच में पड़ जाता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।